سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ زندگی کی وہ تمام تر سچائیاں، زندگی کی تمام تر کڑواہٹیں، زندگی کا جو زہر ہے جو ہمارے رشتوں کے بیچ پھیل رہا ہے، اس زہر کو سمیٹیں اور ایک سقراط کی تلاش کریں، ایک ایسے سچے فنکار کی تلاش کریں جو اس زہر کو اپنی شاعری کا حصہ بنانے کی کوشش کرے۔ رشتوں کو جوڑنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس مشکل کام کو آسان بنانا آج کے فنکار کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کی زندگی کا حصہ بھی۔ آئیے میں جھانسی سے تشریف لانے والے مہمان شاعر جناب سرور کمال کو آواز دے رہا ہوں، اور آپ سے ایک بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے سرور کمال کو توجہ کے ساتھ سنا تو یقیناً کئی اچھی غزلیں اور ایک بہت ہی خوبصورت سے گیت سے نواز کر جائیں گے، یہ مجھے امید ہے۔ اور اسی امید کے ساتھ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ جناب سرور کمال آپ کی عدالت میں اپنے کلام کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زوردار استقبال کے ساتھ سرور کمال کو اجازت دیجئے کہ وہ اپنا کلام سنانا شروع کریں۔ دوستو، دو تین سال کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں بہت دیر سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ مشاعرہ سنتے چلے آئے ہیں آج اس طریقے سے مشاعرہ نہیں سن سکتے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو وہ 12 کے لوگ نہیں ہیں یا یہ دوسرے لوگ ہیں۔ اگر 12 کے لوگ ہیں تو یہ ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ ہم وہی لوگ ہیں، وہی مشاعرہ وہی شاعری سنتے چلے آئے۔ میں حاضر کرتا ہوں چند شعر، اور مجھے لگنا چاہیے کہ آپ لوگ بالکل تیار ہیں، آپ کا ذہن تیار ہے شاعری سننے کے لیے۔ چند شعر میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، بالکل جوڑ کے سنیے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ میں کچھ امید لے کے آیا ہوں، کچھ آپ کو نئے کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور جیسا آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ میں اسی طریقے سے تیار ہوں۔ میں حاضر کرتا ہوں، ندی فاروق صاحب بہت محنت کر رہے ہیں مشاعرے کے لیے، اور تمام میرے شاعر حضرات بیٹھے ہیں، ان کی بھی کافی محنت کر رہے ہیں بیچارے ڈائس پہ، لیکن آپ لوگ ایک ذہن نہیں بنا رہے ہیں۔ وہ آپ مشاعرے کی فضا میں آ جائیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ چند شعر ملاحظہ فرمائیے کہ عرض کیا ہے کہ ایک نیا وہ کام کر کے آ گئے، ایک نیا وہ کام کر کے آ گئے، وہ ہمیں بدنام کر کے آ گئے۔ آپ نے جس طریقے سے میں نے سنایا تھا اس طریقے سے نہیں، پھر میں پیش کرتا ہوں کہ ایک نیا وہ کام کر کے آ گئے، وہ ہمیں بدنام کر کے آ گئے، اور آبرو سب کی چھپائتا وہ گھر، آبرو سب کی چھپائتا وہ گھر، تم اسے نیلام کر کے آ گئے۔ آبرو سب کی چھپائتا وہ گھر، تم اسے نیلام کر کے آ گئے۔ ایک دن مانگا تھا اس نے دل میرا، ایک دن مانگا تھا اس نے دل میرا، زندگی ہی نام کر کے آ گئے۔ یہ بات کچھ اب لگا کہ ہاں یار سن رہے ہیں آپ، خدا کی قسم ایسی سنتے رہو، میں دھیرے دھیرے کر کے لے چلوں گا آپ کو اپنے ساتھ۔ میں حاضر کرتا ہوں چند شعر اور ملاحظہ فرمائیے گا کہ ایک دن مانگا تھا اس نے دل میرا، زندگی ہی نام کر کے آ گئے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ کم ظرف تھا اسے یہ بتانا پڑا مجھے، کم ظرف تھا اسے یہ بتانا پڑا مجھے، کم ظرف تھا اسے یہ بتانا پڑا مجھے، احسان کر کے یاد دلانا پڑا مجھے۔ واہ واہ واہ۔ کم ظرف تھا اسے یہ بتانا پڑا مجھے، احسان کر کے یاد دلانا پڑا مجھے، اور سورج تیرا غرور مٹانا پڑا مجھے، میں آئینہ ہوں تجھ کو بتانا پڑا مجھے۔ سورج تیرا غرور مٹانا پڑا مجھے، میں آئینہ ہوں تجھ کو بتانا پڑا مجھے، اور کل تک جو سامنے میرے آتے نہ تھے کبھی، کل تک جو سامنے میرے آتے نہ تھے کبھی، ایسوں کو اپنا منہ بھی لگانا پڑا مجھے۔ کل تک جو سامنے میرے آتے نہ تھے کبھی، کل تک جو سامنے میرے آتے نہ تھے کبھی، ایسوں کو اپنے منہ بھی لگانا پڑا مجھے، اور اس شہر حکومت میں کبھی نام تھا میرا، اس شہر حکومت میں
नाम था मेरा, रिक्शा इसी नगर में चलाना पड़ा मुझे। इस शहर हुकूमत में कभी नाम था मेरा, इस शहर हुकूमत में कभी नाम था मेरा, रिक्शा इसी नगर में चलाना पड़ा मुझे। उस सरवर सियासी खेल भी कितना अजीब है, सरवर सियासी खेल भी कितना अजीब है, किस किस को अपने पास बिठाना पड़ा मुझे। सरवर सियासी खेल भी कितना अजीब है, सरवर सियासी खेल भी कितना अजीब है, किस किस को अपने पास बिठाना पड़ा मुझे। चंद शेर और मुलाजा फरमाएं, किस किस को अपने पास बिठाना पड़ा मुझे कि हमारा नाम आते ही तुम्हारा दम निकलता है, हमारा नाम आते ही, अरे यार सुन के बता देना ये मतलब कि हमारा नाम आते ही तुम्हारा दम निकलता है, हमारा नाम आते ही तुम्हारा दम निकलता है। कुआं जब सूखने लगता तो पानी कम निकलता है, हमारा नाम आते ही तुम्हारा दम निकलता है, कुआं जब सूखने लगता तो पानी कम निकलता है। और आजाद ये शेर मुलाजा फरमाइए, अगर ये शेर सच्चा है तो आप सबकी आवाज हमारे कानों तक आना चाहिए। मुलाजा फरमाइए कि कुआं जब सूखने लगता तो पानी कम निकलता है, जो लोगों को सुनाते हैं तराने देशभक्ति के, जो लोगों को सुनाते हैं तराने देशभक्ति के, तलाशी में उन्हीं लोगों के घर पे बम निकलता है। भाई क्या कहना है, वाह 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 वाह। जो लोगों को सुनाते हैं तराने देशभक्ति के, बस ऐसे जिंदा होकर सुनिएगा, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप जिंदा हैं आप लोग। मैं शेर पेश करता हूँ जी भाई, जो लोगों को मैं हाजिर करता हूँ, जो लोगों को सुनाते हैं तराने देशभक्ति के, जो लोगों को सुनाते हैं तराने देशभक्ति के, बहुत अच्छा। तलाशी में उन्हीं लोगों के घर से बम निकलता है। बशर तो क्या फरिश्ते नाश करते माँ की अजमत पर, बशर तो क्या फरिश्ते नाश करते माँ की अजमत पर, इधर वो आह करती है वहां जमजम निकलता है। बशर तो क्या, बशर तो क्या फरिश्ते नाश करते माँ की अजमत पर, बशर तो क्या फरिश्ते नाश करते माँ की अजमत पर। सरवर कमाल क्या क्या शेर सुना रहे यार, वाह वाह वाह। बशर तो क्या फरिश्ते नाश करते माँ की अजमत पर, इधर वो आह करती है वहां जमजम निकलता है। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ नसीब भाई, इरशाद इरशाद। इधर वो आह करती है वहां जमजम निकलता है। वो वैसे तो हमारे साथ में दिन रात रहता था, वो वैसे तो हमारे साथ में दिन रात रहता था, विधायक बन गया जब से तो घर से कम निकलता है। क्या कहना, वाह वाह वाह। वो वैसे तो हमारे साथ में दिन रात रहता था, वो वैसे तो हमारे साथ में दिन रात रहता था, वैसे तो हमारे साथ में दिन रात रहता था, विधायक बन गया जब से वो घर से कम निकलता है। तो यहाँ पे पत्थरों के नाम भी इंसानों जैसे हैं, यहाँ पे पत्थरों के नाम भी इंसानों जैसे हैं। ये पत्थर वो है जिसकी कोख से नीलम निकलता है, ये पत्थर वो है जिसकी कोख से नीलम निकलता है। कुछ ऐसे गम हैं जिसमें लोग रोना भूल जाते हैं, बहुत अच्छा मिसरा है, वाह। कुछ ऐसे गम हैं जिसमें लोग रोना भूल जाते हैं, बहुत से गम के रोने पर ये दिल का गम निकलता है। कुछ ऐसे गम हैं जिसमें लोग रोना भूल जाते हैं, बहुत से गम के रोने पर ये दिल का गम निकलता है। और तरन्नुम से आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ चंद शेर मुलाजा फरमाइएगा। बिल्कुल जिस तरीके से आप सुन रहे हैं उसी तरीके से जुड़े रहिएगा। भैया ये कौन नाम सुनिएगा। मुश्किलों के साए में आज जिंदगानी है, मुश्किलों के साए में क्या कहना है, वाह। मुश्किलों के साए में आज जिंदगानी है, किस कदर ज़माने की हम पे मेहरबानी है, किस कदर ज़माने की हम पे मेहरबानी है, मुश्किलों के साए में वाह वाह। हम तो उन सिवा
तुम्हें सुनानी जो तुम्हें सुना ये गजल और आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह नया गीत आपके। हाँ हाँ गजल सुनाइए पहले, उसके बाद गीत सुनाइए। चंद शेर इस गजल, बिल्कुल ताज़ा गजल है, नई गजल। अभी आपने टीवी के जरिए भी, टीवी उर्दू के जरिए नहीं पहुंची आप तक, मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। बिल्कुल अगर आपने इस गजल को सुन लिया और सराहा तो मैं आगे भी कोई मुशायर में पढ़ सकूँगा, लेकिन बहुत जोड़ के सुनिएगा। तो मुलायजा फरमाइए। क्या कहना है बाबा जी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने नवाजा। अदलो ईमा जैसा करता हूँ जी, मैं होना चाहिए। अदलो ईमा वाला फरमान होना चाहिए। हज़रत उमर फारूक ने 92 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की है। आज का हमारा जो प्रधानमंत्री है वो क्या है और पहले की हुकूमत क्या थी, मैं इस मतलब में मैंने पेश की। मैं हाजिर करता हूँ पर दोबारा। अदलो ईमान वाला फरमान होना चाहिए। अब उमर जैसा कोई, अब उमर जैसा कोई सुल्तान होना चाहिए। आजाद की शेर भी अगर सच्चा है तो आपकी आवाज आना चाहिए मेरे कानों तक। मैं पेश करता हूँ। हमने भी तो खून की किस्तें चुकाई है वतन, हमने भी तो खून की किस्तें चुकाई है वतन। अब हमारे नाम का, अब हमारे नाम का ऐलान होना चाहिए। अभी तो ये गजल मुकम्मल करनी है। नहीं, मैं जा नहीं रहा था, खुदा की कसम जाके देख रहा था आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। वाकई आप लोग अब सुनने के मूड में आ गए और अब मैं सुनाने के मूड में आ गया। जी मैं हाजिर करता हूँ। हज़रत कुछ मेरे शायर दोस्त अभी रास्ते में है, इंशाल्लाह इस डाइट पे रौनक अफरोज हो जाएंगे कुछ देर के बाद। जब तक मैं आपकी खिदमत करूँगा और जब तक आप लोग सुनना चाहेंगे मैं सुनाऊंगा, ठीक है ना? मैं हाजिर करता हूँ। अब मुझे लगा कि आप लोग सुनने के मूड में आ गए। बिल्कुल, अब मैं सुनाने के मूड में आ गया। आपने मूड बना दिया मुझे सुनाने के लिए। जी सुनिएगा, सुनाइए सुनाइए। हमने भी तो खून की किस्तें चुकाई है वतन, हमने भी तो खून की किस्तें चुकाई है वतन। अब हमारे नाम का, अब हमारे नाम का ऐलान होना चाहिए। हमने भी तो खून की किस्तें चुकाई है वतन। और
18 और 19 महीने हो गए इस सरकार को, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। अब मैं शेर पेश करता हूँ, अगर शेर सच्चा है तो फिर बिल्कुल ऐसी, हाँ काम ऐसे होना चाहिए, मुझे लगना चाहिए 12 में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। सुनिए, अच्छे दिन के बाद ये ऐलान होने वाला है, अच्छे दिन के बाद ये ऐलान होने वाला है, इंडिया का नाम अब, इंडिया का नाम अब जापान होना चाहिए, अच्छे दिन के बाद ये ऐलान होने वाला है, इंडिया का नाम अब, इंडिया का नाम अब जापान होना चाहिए। और साथ ही शेर भी मुलाजा फरमा लें। हर किसी भी शख्स को अपना बनाया मत करो, क्या कहना? हर किसी भी शख्स को अपना बनाया मत करो, हर किसी भी शख्स को अपना बनाया मत करो, तुमको अपनों गैर की, तुमको अपनों गैर की पहचान होना चाहिए, हर किसी भी शख्स को अपना बनाया मत करो, तुमको अपनों गैर की, तुमको अपनों गैर की पहचान होना चाहिए। क्या हुआ सच बात कहने से तू क्यों कतरा गया, क्या हुआ सच बात कहने से तू क्यों कतरा गया, क्या हुआ सच बात कहने से तू क्यों कतरा गया, आईना है कुछ तेरी, आईना है कुछ तेरी पहचान होना चाहिए, आईना है कुछ तेरी पहचान होना चाहिए। आजाद चंद शेर और आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, उसके बाद गीत इंशाअल्लाह पेश करूंगा मैं। मुलाजा फरमाइए, बस ऐसे जिंदा होकर सुनिएगा, जिंदा दिल होकर सुनिएगा, सुनिएगा। वादों के बादल बरसाने वाले हैं, बरसाने वाले हैं, वादों के बादल बरसाने वाले हैं, वादों के बादल बरसाने वाले हैं, वादों के बादल बरसाने वाले हैं, फिर खादी जादूगर आने वाले हैं, फिर खादी जादूगर आने वाले हैं। और एक शेर पेश करता हूँ, बस शेर का मजा लेना। बच के रहना खाकी वर्दी वालों से, बच के रहना खाकी वर्दी खुदा की वालों से। कसम, मैं यहाँ की पुलिस की बात नहीं कर रहा, मैं अपने यहाँ की पुलिस की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि मुझे यहाँ से सही सलामत भी आना है, मैं पुलिस के कर्तव्य से वाकिफ हूँ। मैं शेर पेश करता हूँ। बच के रहना खाकी वर्दी वालों से, बच के रहना खाकी वर्दी वालों से, ये रस्सी का सांप बनाने वाले हैं, ये रस्सी का सांप बनाने वाले हैं, ये रस्सी का सांप बनाने वाले हैं। उसने हमारी गैरत को ललकारा है, उसने हमारी गैरत को ललकारा, उसने हमारी गैरत को ललकारा है, उसने हमारी गैरत को ललकारा है। हम भी अब तलवार उठाने वाले हैं, हम भी अब तलवार उठाने वाले हैं, हम भी अब तलवार उठाने वाले
आजाद ये शेर भी सच्चा है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। खून हमारा शामिल है इस मिट्टी में, खून हमारा शामिल है इस मिट्टी में, खून हमारा शामिल है इस मिट्टी में, खून हमारा। पूर्व पार्षद जाकिर मंसूरी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। एक बार तालियां हमारे अखलाक अंसारी साहब के साथ और सारी कमेटी के हवाले से मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ कि बहुत अच्छा मुशायरा सजा है। अखलाक अंसारी साहब पार्षद, नियाज मोहम्मद साहब पार्षद और रुखसाना बानो पार्षद और इनके साथ में शिव शंकर यादव जो मेरा अध्यक्ष हैं, इनकी बड़ी मेहनतें और मोहब्बतें इस मुशायरे के इनेकाद में शामिल रही हैं। पूरे पालिका परिवार को मुबारकबाद और इन तमाम पार्षद साथियों को मुबारकबाद। और मेरी सरवर कमाल माइक पर है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बहुत ही खूबसूरत कलाम को सुना रहे हैं, कुछ और कलाम उन्हें सुनाना है और उसके बाद उन्होंने गीत सुनाने का वादा किया है, जिस वादे को भी वफा करना है। मैं सरवर कमाल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। जी मैं करता हूँ। खून हमारा शामिल है इस मिट्टी में, खून हमारा शामिल है इस मिट्टी में, हम कब इसको छोड़ के जाने वाले हैं, हम कब इसको छोड़ के जाने वाले हैं, हम कब इसको छोड़ के जाने वाले हैं। और सरबरी ताकत के नाम मैं जायज से इस मतले शेर का जवाब देता हूँ, शेर से जवाब देता हूँ। मैं अगर शेर बिल्कुल आप तक पहुँच जाए तो मैं समझूंगा कि हवा के मेरे यहाँ आने की मेहनत वसूल हो गई। शेर मुलाजा फरमाइएगा। तेल पे कब्जा करने वाले सुन ले तू, तेल पे कब्जा करने वाले सुन ले तू, तेल पे कब्जा करने वाले सुन ले तू, हम पानी में आग लगाने वाले हैं, हम पानी में आग। मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तेल पे कब्जा करने वाले सुन ले तू, तेल पे कब्जा करने वाले सुन ले तू, हम पानी में आग लगाने वाले हैं, हम पानी में आग लगाने वाले हैं, जिनका दामन खुद ही काला है सरवर, जिनका दामन खुद ही काला है जिनका सरवर, दामन खुद ही काला है सरवर, जिनका दामन खुद ही काला है सरवर, वो हम पर इल्जाम लगाने वाले हैं, वो हम पर इल्जाम लगाने वाले हैं, वो हम पर इल्जाम लगाने वाले हैं। आजाद चंद शेर और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। इरशाद इरशाद। आप लोग थक तो नहीं है ना? हाँ, अगर थके नहीं हो तो फिर मैं सुनाता रहूंगा आपको। नहीं थके नहीं, आप तो मूड में आए हैं सही से। वाकई अब तो वहाँ मुझे लगा कि अब आप लोग फुल फ्लैश बिल्कुल मूड में आ गए। बल्कि अब ऐसे मूड में आए हैं कि अभी एक साहब ने मुझे स्लिप भेजी कि जब चांदनी सलीमी पढ़ रही थी तो मैं किसी काम से गया हुआ था, अगर ये हो सकता हो तो उन्हें दोबारा से एक गीत पढ़ने के लिए बुला लीजिए। मैंने अभी उनके उस स्लिप का जवाब नहीं दिया है। अभी फिलहाल आप माइक पर हैं तो आपकी जिम्मेदारियां हैं कि आप जब ये लोग सुनने के लिए आमादा हो गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खूबसूरत सा कलाम इनकी खिदमत में पेश करें। जोरदार तालियों से सरवर कमाल का इस्तकबाल करके उन्हें यकीन दिलाइए कि आप भरपूर तवानाई के साथ, भरपूर ताजगी के साथ उन्हें सुन रहे हैं और वो अपना कलाम पेश करेंगे। सुनिएगा, दो शेर और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, उसके बाद गीत इंशाअल्लाह मैं नया गीत बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। मुलाजा फरमाइएगा। हम बच्चों को यूं बहलाते रहते हैं, हम बच्चों को यूं डिस्टर्ब मत करो, फिर आपने ईगो बढ़ा दिया, ईगो कम कर दिया। हाँ, क्यों बढ़ा रहे आप? जितना पहले था बहुत बढ़िया था, वो बेस खोल दीजिएगा। हम बच्चों को यूं बहलाते रहते हैं, हम बच्चों को यूं बहलाते रहते हैं, हम बच्चों को यूं बहलाते रहते हैं, रोटी की तरह
تصویر دکھاتے رہتے ہیں، روٹی کی تصویر دکھاتے رہتے ہیں، نیتا ہے کہ الف لیلا کے جادوگر، نیتا ہے کہ الف لیلا کے جادوگر. بیٹا اٹھ کے بیٹھ جاؤ. لیکن میرا بھائی ہے اخلاق اور وہ مشاہدے میں نیاز میرا بھائی ہے، ان سب کے لیے نہیں، یہ تو بیچارے میرے بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں. میں شعر پیش کرتا ہوں. نیتا ہے کہ الف لیلا کے جادوگر، نیتا ہے کہ الف لیلا کے جادوگر، پانی پر قالین بچھاتے رہتے ہیں، پانی پر قالین بچھاتے رہتے ہیں، پانی پر قالین بچھاتے رہتے ہیں، جھوٹے وعدوں کی پٹری پر اے سرور، جھوٹے وعدوں کی پٹری پر اے سرور، سب سرکاری ریل چلاتے رہتے ہیں، سب سرکاری ریل چلاتے رہتے ہیں، سب سرکاری ریل چلاتے رہتے ہیں. اور سنیں گے آپ؟ گیت سنا دوں آپ کو. سنائیے سنائیے. میں گیت حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. ارشاد ارشاد. بالکل نیا گیت ہے اور میرے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اس گیت کی ایک ایک لائن ایک ایک بند پہ آپ سب حضرات کی شرکت ہونا چاہیے. میری گزارش ہے، میرے ہاتھ جوڑ گزارش ہے کہ ایک ایک لائن پہ ایک ایک بند پہ آپ کی سب کی شرکت ہونا چاہیے. ملاحظہ فرمائیے گا. اس گیت کا عنوان ہے بیوہ کی بیٹی. بالکل نیا گیت آپ کی خدمت کا. ارشاد ارشاد. ایک بیوہ کی بیٹی ہوں میں، میرا کون سہارا ہے، بیچ بھور میں ناؤ ہے میری، کوسوں دور کنارہ ہے، بیچ بھور میں ناؤ ہے میری، کوسوں دور کنارہ ہے. بند حاضر کرتا ہوں. ایک دکھیاری ماں ہے، دن بھر پتھر ڈھویا کرتی ہے، ارمانوں کی کیاری میں وہ کیا کیا بویا کرتی ہے. یاد میں میرے ابو کی چھپ چھپ کر رویا کرتی ہے، اپنی قسمت کے دھاگوں میں اشک پرویا کرتی ہے. چلتی پھرتی لاش ہے ایسی، وقت نے جس کو مارا ہے، مارا ہے. ایک بیوہ کی بیٹی ہوں میں، میرا کون سہارا ہے، میرا کون سہارا ہے. رشتوں کی ایک بھیڑ لگی ہے، پھر بھی اپنا کوئی نہیں، دستک تو ہوتی رہتی ہے لیکن آتا کوئی نہیں. دھوپ میں سر پر آ کر ٹھہرے ایسا سایہ کوئی نہیں، ہاتھ پکڑ کر جو لے جائے ایسا فرشتہ کوئی نہیں. کس کو ہم آواز لگائیں، کس کو ہم آواز لگائیں، ان میں کون ہمارا ہے، ہمارا ہے. ایک بیوہ کی بیٹی ہوں میں، میرا کون سہارا ہے، میرا کون، میرا کون سہارا. اس گیت کا خاص بند آپ کی سماعتوں کے سپرد کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. ملاحظہ فرمائیے. سونی مانگ کو بھرنے
क्या कहना? कब मुफलिस की मर्जी से भी ये तकदीर बदलती है, कीमत देकर भी दुल्हन एक रोचता में जलती है। इनको क्या इंसान कहेंगे जिनका खेल ये सारा है, वाह वाह, सारा है। एक बेवा की बेटी हूँ मैं, मेरा कौन सहारा है, मेरा कौन सहारा है, मेरा कौन सहारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। काश कहीं भी जाऊं मैं तो माँ की याद सताएगी, मुझसे बिछड़ कर मेरी माँ भी तो पागल हो जाएगी। खाना किसे खिलाएगी वो, लोरी किसे सुनाएगी, दर्द की चादर ओढ़ के वो तो भूखी ही सो जाएगी। मन उसका है घायल पंछी, जीवन टूटा तारा है, तारा है। एक बेवा की बेटी हूँ मैं, मेरा कौन सहारा है, मेरा कौन सहारा है, मेरा कौन सहारा है। आखिरी बंद मुरादा फरमा ले। इरशाद। माँ के सर पर बोझ नहीं हूँ, कैसे उसे समझाऊं मैं, जीवन भर की इस उलझन को अब कैसे सुलझाऊं मैं। दो राहे पर ठहरी हूँ मैं, वो लोग किधर को जाऊं मैं, घुट घुट कर मैं जीना सीखूं, रेल से या कट जाऊं मैं। मुझ दुखियारी का ये जीवन, मुझ दुखियारी का ये जीवन क्यों इतना बेचारा है, बेचारा है। एक बेवा की बेटी हूँ मैं, मेरा कौन सहारा है, क्या कहना है? मेरा कौन सहारा। वाह वाह। जनाब सरवर कमाल झांस भी अपना कलाम पेश कर रहे थे और आपने महसूस किया कि सरवर कमाल ने जिंदगी की ऐसी कड़वाहटों को अपने गीत का हिस्सा बनाया जिसमें एक बेवा की बेटी के जो जज्बात और एहसासात थे उसे सरवर कमाल ने अपने गीत का हिस्सा बनाकर आपकी अदालत में पेश किया। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, बुलाएं बुलाएं। नहीं बिल्कुल, अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर कोई मौका ही नहीं है कि सरवर कमाल रुक जाए, क्योंकि अब सरवर कमाल को आपकी फरमाइशों का एहतराम करते हुए एक और गीत सुनाना है। लेकिन आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बार जरा सा हौसला बढ़ाने के लिए इनको जोरदार तालियों के बीच आवाज दीजिए ताकि उन्हें लगे कि वो उन्हें आप सुनना चाहते हैं। मैं जनाब सरवर कमाल से गुजारिश कर रहा हूं। क्या हुआ? पानी ना पिलाएं? पिलाएं पिलाएं। हाँ तो पी लेने दो, पानी पी लेने दो। वैसे भी सरवर कमाल जाहिर है कि बहुत संजीदा लहजे के शायर भी हैं और बहुत संजीदा और बहुत सीधे साधे आदमी भी हैं। एक इंसान के तौर पर भी बहुत सीधे साधे हैं और जाहिर है कि वैसे ही तमाम एहसासात उनकी शायरी में मिलते भी हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें उसी तरह से जैसे उनका हक बनता है उस तरह से उन्हें दादो तहसीन से नवाजें। जनाब सरवर कमाल माइक पर। सुनिए दोस्तों, एक फरमाइश एक गीत की और है, मैं आपकी खिदमत में वो गीत भी पेश कर रहा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत बहुत मोहब्बतों से नवाजा मुझे। जितनी मोहब्बतें मुझे चाहिए थी उससे भी कहीं बढ़ के आपने मोहब्बतें दी मुझे। एक गीत और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। मेरा भाई अखलाक
اس کی فرمائشیں اور چند دوست ہیں کہ ان کی فرمائشیں پیش کرتا ہوں۔ ندیم صاحب بہت کلاس بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں، ایک بار ندیم صاحب کے لیے زوردار تالیوں سے استقبال کرتے ہیں، جس سے کہ ندیم صاحب بہت محنت کرتے ہیں، میرے بہت بڑے بھائی ہیں، کرم فرما ہے۔ شکریہ بھائی۔ آپ کی آج اس مشاعرے میں مین ہمارے رکن ہے مشاعرے کی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں حاضر کرتا ہوں گیت، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ کیسی شہزادی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے، قالینوں پر چلنے والی در در ٹھوکر کھاتی ہے۔ یہ کیسی شہزادی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے، کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ عمر ہے 16 سال کی لیکن جیون سوکھا بادل ہے، کیا کہنا، سر پر کوئی تاج نہیں ہے، بیوہ ماں کا چل ہے، جسم دکھاتے کپڑے اس کے پاؤں میں ٹوٹی چپل ہے، اپنی کچھ پرواہ نہ کر کے گھر کا خرچ چلاتی ہے۔ کیا کہنا، یہ کیسی شہزادی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے، دھوپ نکلنے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا پڑتا ہے، سردی بارش میں بھی ہر دن کام پہ چلنا پڑتا ہے، پیٹ کی آگ میں پھر بھی اس کو دن بھر جلنا پڑتا ہے، جھاڑو دینے برتن دھونے گھر گھر آتی جاتی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے۔ حضرت اس گیت کا خاک بند ملاحظہ فرمائیے۔ رات گھروں میں جو بچتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، جھوٹا کھانا باسی روٹی ہی تقدیر کا حصہ ہے، پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن دل تو بھوکا رہتا ہے، شکر ادا کر کے مالک کا پھر بھی یہ سو جاتی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے، یوں تو کتنے لوگ ہی اس سے ہمدردی دکھلاتے ہیں، اور ہوس کے پردے میں یہ بھائی چچا بن جاتے ہیں، باپ کی عمر کے لوگ بھی اس کو رات گئے بلواتے ہیں، ننگی بھوکی آنکھوں کا یہ پھر درپن بن جاتی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے۔ آخری پر ملاحظہ فرمائیے۔ کون بنے اب دولہا اس کا، کون بہو کا درجہ دے، زرداروں کا جھوٹن کہہ کے جو آئے وہ ٹھکرا دے، امیدوں کے تھال کے موتی ایک ٹھوکر ہی بکھرا دے، بنتے پھر ارمان براتی خود دلہن بن جاتی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے۔ سرور کمال صاحب نے آپ کی فرمائشوں کا احترام کرتے ہوئے ایک اور خوبصورت سا گیت سنایا، بڑی سنجیدہ سی بات چیت، ایک ایسے ٹاپک پر، ایک ایسے عنوان پر جو ہماری بیٹی سے تعلق رکھتا ہے، ہماری بیٹیوں کا جو
जज्बात और एहसासात हो सकते हैं। एक बेटी जिन जिन तकालीफ का सामना करती है अपनी जिंदगी में, उन तमाम तकालीफ का जिक्र एक शायर जब अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है तो उसका लहजा क्या हो सकता है, इसका नमूना आपने सरवर कमाल की शायरी में देखा।